Friends, I had a prepared speech, quite long, 18 pages, would have been quite boring for you. Just before I come in here, I sat with the management people, management committee of the AMA, and I had a very, very interesting discussion with them. And I decided that when I speak to you, I will not speak from a prepared text. I will speak to you from my heart. पिछले 10 साल में हमारे मुल्क में मीडिया ट्रेंड्स में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं, कई तरह के चेंजेस हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है केबल and communication through mobile phone. These two have really been revolutionary. There are two things today, a cable TV and a mobile phone, which are used from Ratan Tata and Mukesh Ambani to somebody who is working in our homes as a domestic help. And these are compulsory. These are not luxury items anymore. Today, a plumber also displays his mobile phone on the wall that if you want to invite a plumber, if you want somebody to fix a lock in your house, if you want a carpenter, you use a mobile phone. Similarly, if cable TV goes off in your house, you can imagine what kind of havoc it creates because it has become a habit. And when cable TV becomes people's habit, when cable TV starts going to various houses, there are technological advancement. We had cable, we have DTH now, we will have IPTV, we will have a TV on mobile. In the years to come, the connectivity of cable homes is going to increase. More and more people will watch. अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 साल 20 साल पहले की सिचुएशन देखी होगी, हमारे घर में सिर्फ जो टीवी सेट था, एक टीवी सेट होता था, उस टीवी सेट में सिर्फ एक चैनल आता था, दूरदर्शन। दूरदर्शन में भी हिंदी की फिल्म, आधी फिल्म एक दिन दिखाई जाती थी शनिवार को और बाकी आधी बची हुई फिल्म अगले दिन दिखाई जाती थी। दूरदर्शन में आज भी वैसे दिखाई जाती है। लेकिन जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने टेलीविजन चैनल्स को अपने हाथ में लिया तो दे क्रिएट रिवॉल्यूशन। टुडे देयर आर मूवी चैनल्स, देयर आर इंटेलिजेंस चैनल्स विच गिव नॉलेज, चैनल्स लाइक डिस्कवरी, देयर आर न्यूज चैनल्स, देयर आर एंटरटेनमेंट चैनल्स, एंड दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज ग्लूड टू। इसीलिए आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, स्पेशली मीडिया को लेकर, स्पेशली न्यूज चैनल्स को लेकर। लोग मुझे पूछते हैं कि साहब न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ तो आप दिखाते नहीं, आप तो उसमें न्यूज़ के अलावा बाकी सब दिखाते हैं। मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, पिछले 10 साल में जैसे जैसे सोसाइटी में कम्युनिकेशन बढ़ा है, वैसे वैसे न्यूज़ का स्कोप बढ़ गया है। अर्लियर वी यूज्ड टू सी political leaders cutting ribbons, giving long, boring speeches on our TV channels. And that's all. जो सरकार की तरफ से जो खबर आती थी, चीफ मिनिस्टर कहेंगे या प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, वो सबसे बड़ी खबर मानी जाती थी। लेकिन पिछले 4-5 साल में न्यूज़ का दायरा बढ़ा। क्रिकेट, क्राइम, सेलिब्रिटीज, सिनेमा, all these C's have become part of news. The scope of coverage of news has gone up. The character of news has changed. To give you an example, the way cricket has changed. Till 15 years ago, Sunil Gavaskar's style of playing test cricket was the best thing to happen. जब कैरी पैकर ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, डे नाइट क्रिकेट शुरू किया तो लोगों ने कहा ये तो क्रिकेट के साथ मजाक है, ये लाल पीले कपड़े पहन के रात के अंधेरे में सफ़ेद बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, ये कोई क्रिकेट है? But that became the order of the day. Limited over crickets became more popular
Then this is where Sachin Tendulkar and Saurav Ganguly and Rahul Dravid came up. Again, it changed last year. 2020 came up. People were laughing. Is this cricket? No one is going to watch it. No one is going to seriously. But that became the most popular cricket. And which threw up people like Mahendra Singh Dhoni and Yuvraj Singh, who are the heroes today. The society is changing. Cricket is only one example. Similarly, the news is changing. And this is the changing trend of news, which we all must understand. People's urge to know more and more about. लोगों ने मुझे कहा कि साहब आपकी अदालत ये तो बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में तो बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं, लेकिन आपने इसमें राखी सावंत को क्यों बुलाया? मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है राखी सावंत से आपको? तो उन्होंने कहा वो कम कपड़े पहनती हैं। तो मैंने कहा स्वामी रामदेव भी कम कपड़े पहनते हैं, उनको देख लीजिए। दी काइंड ऑफ पीपल, अगर आज मैं भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी को आपकी अदालत में बिठा करके सवाल पूछूंगा तो शायद उतने लोग नहीं देखेंगे। लोगों का टेस्ट, लोगों की थिंकिंग बदली है। और मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, इंडिया टीवी की सफलता का राज ये है कि हमने अपने आप को बदला है। मैं किसी एक ऐसे पेडेस्टल पर नहीं बैठा कि मैं आई एम एन एडिटर, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर 30 years एंड आई शुड नॉट बी इंटरव्यूइंग राखी सावंत। Why not? She is somebody, comes from an ordinary family. She has placed for herself in a film industry like Mumbai. She has become envy to film stars, and she answers much better than Aishwarya Rai, I can tell you. Why not? Why not Dhoni? Why not Yuvraj Singh? See, these are the people who have become icons. These are the people who have become personalities. But इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मीडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी आ गई है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बड़े गैर जिम्मेदार आप लोग हो गए हैं। इफ यू लुक एट एनी इंसिडेंट, अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। हर आदमी जानना चाहता है। शाम को 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक न्यूज चैनल्स में जितनी हमारी ताकत थी, जितने बेहतर तरीके से बता सकते थे, उन बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया। आप जानते हैं उस 6 घंटे में इंडिया टीवी पर एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चला। देयर वर नो ब्रेक्स। दिस 6 hours प्राइम टाइम वॉज शोन एट द कॉस्ट ऑफ मनी, एंड नॉट ओनली अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली। अब ये अलग बात है कि वो ब्लास्ट शाम के टाइम करते हैं, प्राइम टाइम पर, जब सबसे ज्यादा रेट्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के। बेनजीर भुट्टो का एसेसिनेशन हुआ, वो भी शाम के वक्त हुआ। जो हमारे एड सेल्स के लोग हैं वो मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं कि साहब आप ये एडवाइस नहीं कर सकते, ये नॉन प्राइम टाइम में कुछ टेररिज्म कर लें, नुकसान नहीं होगा। बट जब भी जरूरत पड़ी है, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ, मैंने आपसे कहा मैं दिल से बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। कश्मीर में एजिटेशन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, होम मिनिस्टर ने बुला के न्यूज़ चैनल से बात की इनफॉर्मल तरीके से। उन्होंने कहा हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इनको ज़्यादा दिखाएंगे, ये इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल फोरम्स पे हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेंगे। हमने तय किया हम नहीं दिखाएंगे। नोएडा में एडोब इंडिया के सीईओ का बच्चा किडनैप हो गया, 1.5 साल पहले की घटना है। आई वॉज वॉचिंग लाइव टेलीकास्ट। ऑब्वियसली एक बच्चा एक अमेरिकन कंपनी के सीईओ का गिरफ्तार हुआ है, ये बड़ी खबर है, किडनैप कर लिया। उस बच्चे के घर के बाहर में सारे टीवी कैमरास लाइन से लगे हुए थे। सुबह 11 बजे की बात है, मैंने देखा वो सीईओ अमेरिका से वापस आए अपने बच्चे की किडनैप की खबर सुन करके, बहुत परेशान थे। जब उनसे टीवी कैमरा वालों ने पूछा कि आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं साहब आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस खबर को इतना प्रोमिनेंटली मत दिखाइए, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। हो सकता है वो ऐसे लोगों ने किडनैप किया हो जो इमेच्योर है और वो डर करके मेरे बच्चे को मार दें।
it really hit me from inside. I called up my reporter, and within minutes I called up editors of other news channels. मैंने सबसे कहा, बरखा दत्त से बात की, राजीव सरदेसाई से बात की, प्रणय रॉय से बात की, उनसे कहा कि मुझे लगता है कि हमको नहीं दिखानी चाहिए। एक बाप की एक अपील है जिसको देखना चाहिए। आफ्टर ऑल हम सबके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। They all agreed. Within 5 minutes, the news was withdrawn from all channels, and we showed it only after the boy was recovered. There are many examples like this I can give you. Whenever news channels have been asked to play a role socially, national level पर, जब भी ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके अभी जब कमेटी रूम में बात कर रहा था तो ये कहा कि कई बार गलती होती है न्यूज़ चैनल्स में। एक चैनल में कहते हैं कि 15 आदमी मरे, दूसरे में कहते हैं 18 मरे, तीसरे में कहते हैं 27 मरे। अब किसकी बात को सच माने? अखबार में अगले दिन जब पढ़ते हैं तो उसमें एक्यूरेट फिगर होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अखबार वाले दूध के धुले और सारे दोष हम में है। टीवी के रिपोर्टर के पास में रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। द रिपोर्टर इज स्टैंडिंग ऑन द स्पॉट। आप समझिए कि 6:10 पर ब्लास्ट हुआ है, 6:20 पर 22 मिनट पर रिपोर्टर से स्टूडियो से पूछा जा रहा है, बताइए क्या हुआ, कितने लोग मरे। उसके पास जो कुछ इंफॉर्मेशन इधर उधर से आती है, ही हैज टू गिव। इज अ रिस्पॉन्स टाइम फॉर हिम इज वेरी फ्यू। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद में इंफॉर्मेशन करेक्ट हो जाती है। एवरीवन, यू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम पुलिस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम हॉस्पिटल, देन यू ट्राई एंड से दिस। लेकिन न्यूज़पेपर के पास में ये सुविधा है, वो रात को 12, साढ़े 12 बजे जब तक खबर करते हैं, उनके पास में काफी टाइम है फैक्ट्स को चेक करने का, क्रॉस चेक करने का। इसलिए आपको न्यूज़पेपर में ऐसी खबर मिलती है जिसको रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। लेकिन क्या न्यूज़पेपर्स नहीं बदले पिछले दिनों में? जरूर बदले हैं। अगर हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा तो यह टाइम्स ऑफ इंडिया की पेज 1 लीड स्टोरी होती है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी भी फ्रंट पेज स्टोरी होती है। आज मेरे अपने मीडिया के कुछ दोस्तों से इंटरेक्शन हुआ अहमदाबाद में। मैंने उनको याद दिलाया, जिस मैगजीन के लोग न्यूज़ चैनल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, वो मैगजीन जो नेशनल मैगजीन होने का दावा करते हैं, हर 6 महीने में एक कवर स्टोरी निकालते हैं, सेक्स सर्वे इन इंडिया, सेक्स हैबिट्स ऑफ टीनेजर्स इन इंडिया। किस लिए? मीडिया का ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग जानना चाहते हैं। सिर्फ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनके पास खुद इस बात के जवाब नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे। अभी एक बुजुर्ग हैं यहां बैठे हैं, इन्होंने मुझे पूछा कि ये सुपरस्टिशन बहुत दिखाते हैं आप लोग। बात ठीक है, जरूर दिखाते हैं, लेकिन सुपरस्टिशन क्या है? क्या विश्वास दिखाते हैं या अंधविश्वास दिखाते हैं? मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मैंने उनसे पूछा कि करवा चौथ को आप क्या कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की मीटिंग बुलाई थी 17 तारीख की शाम को। मुकेश अंबानी को बुलाया था, रतन टाटा को बुलाया था, सुनील मित्तल को बुलाया था, कोई नहीं आया। सब छलनी में चांद देख के बीवी को खाना खिला रहे थे। अब ये अंधविश्वास है क्या? मैं कोई बहुत सच बताऊं तो आस्तिक नहीं हूं। मैं कोई मंदिर में जाके पूजा करने वाला, भगवान को मानने वाला नहीं हूं। मैं नहीं इन ज़्यादा चीज़ों में विश्वास करता। लेकिन जो मेरे देश की परंपराएं हैं, उन्हें मैं कैसे नकार सकता हूं? मेरी पत्नी मुझे मंदिरों में ले जाती हैं। उनकी एक ही शर्त है, रिश्ता तभी तक चलेगा जब तक आप मेरे साथ मंदिर में जाएंगे। मैं जाता हूं, और मंदिर में जाना चाहती हैं, उनको कम टाइम मिलता है, मुझे ज्यादा समय भगवान के सामने खड़ा करते हैं, सोचते हैं टीवी पर आएगा। लेकिन आश्चर्य की आपको बात बताता हूं, शिरडी में गए पिछले महीने। उस शिरडी के, किसी का मोबाइल है, आप इन्हें मेरा भी सलाम कह दीजिए। शिरडी के ट्रस्ट में
जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से इंडिया टीवी ने साईं बाबा के बारे में दिखाया, उसको लेकर के लोगों में जागृति आई, विश्वास बढ़ा, और इस साल हमने रिकॉर्ड 200 करोड़ रुपए का डोनेशन हासिल किया है। नंबर ऑफ पीपल विजिटेड हैज बीन हाईएस्ट एवर। मैं वैष्णो देवी भी गया, वो भी पत्नी की वजह से मुझे पैदल चल के बहुत ऊपर तक जाना पड़ा। वहां जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि वी हैव हैड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग, एंड दे ऑल से primarily because of the awareness that you people have created, not only a religious awareness but also how to reach these places. After all, these places are great tourism spots. So it is not only a religious feeling. और अगर लोगों का वैष्णो देवी में विश्वास है, अगर लोगों का शिरडी के साईं बाबा में विश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास कहाँ होता है? पुट्टपत्ती में एक दूसरे वाले बड़े बालों वाले साईं बाबा हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोग, मिनिस्टर्स, मैं उनके नाम तो मिनिस्टर्स के नहीं लेना चाहता, ताकतवर लोग उनके पैर छूते हुए दिखाई देते हैं। हमने तय किया कि ये जो जादू दिखाते हैं उसका सच क्या है। वो ऐसे हवा में हाथ करते हैं, एक सोने की चेन सामने ले आते हैं, वो ऐसे हाथ करते हैं, वो एक एप्पल सामने ले आते हैं। कैसे होता है ये? एक मैजिशियन आए हमें मिलने, उन्होंने कहा कि साहब मैं भी ये करके दिखा सकता हूँ। उन्होंने ऐसे किया और एक सोने की चेन मेरे सामने रख दिया। तो हमने कहा ये अच्छा है, मुकाबला कराते हैं। हमने उन सत्य साईं बाबा के वीडियो दिखाया और साथ में इन जादूगर साहब से ये करके दिखाया, और फिर उन्होंने ये बताया कि कैसे उन्होंने कहा कि ये साईं बाबा की जो तस्वीर लगी होती है इसमें से भस्म गिरती है। उन्होंने स्टूडियो में शाहरुख खान की तस्वीर लगा दी और उससे भस्म निकाल दिया और बताया लोगों को कैसे होता है। हमने बार बार ये कहा कि हम कोई पुट्टपत्ती के साईं बाबा के खिलाफ नहीं है, वो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। वो उस लोगों को उन्होंने सिंचाई के लिए पानी का काम, पानी कैसे पहुंचता है वो दिखाया। उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस बनाया, इंस्टीट्यूट्स बनाए, उन्होंने वहाँ पर लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम्स क्रिएट किए, बहुत अच्छे काम किए। लेकिन अच्छे काम करने वाले को ये जादू दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब जब ऐसे अंधविश्वास सामने आए, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर कोई अंधविश्वास के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने का काम इंडिया टीवी ने किया है, बाकी न्यूज चैनल से भी किया है। आजकल जजेस बहुत कमेंट करते हैं मीडिया के ऊपर, जब मौका लगता है वो कह देते हैं ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। आई अटेंडेड ए conference where there were lawyers and judges. I asked them, क्या ये सच नहीं है कि जैसिका लाल का मर्डर करने वाला, उसका जो हत्यारा है, उसको अदालत ने गवाहों की कमी होने की वजह से छोड़ दिया था? मीडिया ने कैंपेन चलाया, तब जाकर के मनु शर्मा को अदालत ने सजा दी और आज वो जेल में है। क्या ये सच नहीं है कि BMW के बच्चों को कुचल देने वाला, लोगों को कुचल देने वाला आदमी अगर आज जेल में है तो इस वजह से कि मीडिया ने कैंपेन चलाया? ये सब के सब लोग, उनके वकीलों का बयान सुनिए, जब वो अदालत में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये टीवी चैनल वाले अगर नहीं होते तो मेरा बच्चा जेल में नहीं होता। ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप गवाहों को खरीद रहे हैं, आप गवाहों को डरा रहे हैं। मीडिया उस गवाह को यह ताकत देता है, आप जाइए सच्चाई से अपनी बात कहिए, अगर कोई आपको हाथ लगाएगा तो हम आपके पीछे हैं। यह हिम्मत न्यूज चैनल से लोगों के अंदर क्रिएट की है, जिसकी वजह से लोगों को न्याय मिला है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं अलग अलग तरह से आपको बता सकता हूं। आरुषि मर्डर केस का जिक्र बार बार आता है। मीडिया ने रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की। एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने मुझे यह कहा, परसों की बात है, मैं लुधियाना में था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब एक घर में एक बच्ची का मर्डर हो गया, उसके माँ बाप दोनों प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है, उस बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम होता है, उसको जला भी दिया जाता है, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता कि उसी घर की छत के ऊपर एक और लाश पड़ी है, वो नौकर की है, और पुलिस ये कहती है उस नौकर ने उसका मर्डर किया है। इज दिस लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट यू आर डूइंग? और आप कहते हैं कि साहब न्यूज चैनल्स ने उसके नौकर को एक्यूज कर दिया।
वी आर नॉट डिटेक्टिव्स। हम कोई जेम्स बॉन्ड थोड़ी है कि हम पुलिस की तरफ जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये पुलिस का काम है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीआईजी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कैमरे पर ये कहते हैं, जब उस लड़के की लाश मिल गई नौकर की, फादर सस्पेक्टेड देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सर्वेंट एंड द डॉटर, सो इट वाज ए ऑनर किलिंग। It's shameful for any senior police officer to say something like this without substantiating. It is police who arrested that Dr. Talwar and put him behind jails. अब हम क्या करें? हम ये दिखाएं कि डॉक्टर तलवार जेल में नहीं है, मंदिर में बैठे हैं? This is what the level of investigation the police is doing. There are cases after cases where the police investigation is sloppy. Either police has been bribed or police is sleeping. This is where the role of media has come. And I can assure this audience today that whether it is the murder of Soumya, this late journalist of headlines today who was murdered, whose case has not been solved, or it is the case of Arushi, media will not sit quietly. We will keep reviewing it. We will not let people forget it. And we will ensure that the police finds out who murdered Arushi. This is the resolve that we have, because this is our social commitment. This is what people expect from us. We will not allow a witness to be scared by a powerful politician, because TP Yadav's son, Vikas Yadav, is in jail only because of this. He would have got out if media was not after him. In this changing trend, the media has this social responsibility. और हम ये आपस में मानते हैं, हम जब अपने एडिटर्स से, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये कोई हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या मीडिया गलती नहीं करता? ज़रूर गलतियां करते हैं। हमारे एक साथी हैं, एक चैनल है, जिन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, एक टीचर था, उसको कॉल गर्ल रैकेट का लेडी को हेड बता दिया, विच वॉज टोटली रॉन्ग। कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। सरकार ने केबल एक्ट के तहत यह तय किया कि इस चैनल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। Nobody said the government has done anything wrong. We are not like these politicians who will stand up and say, because you are from my party, what you have done is right. No, absolutely not. We all supported the government action. Yes, you are right. लेकिन हमारे मन में एक सवाल उठा, क्या हर बार सरकार एक्शन लेगी हमारे ऊपर? क्या हम गलती करेंगे तो सरकार में बताएगी? I can share this with you that all news channels got together and created a regulatory body जो हमें रेगुलेट करेगी। हम जब गलती करेंगे तो हमारे कान पकड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो सजा देगी। And who did we get? We got retired Chief Justice of India, Justice J.S. Verma, to head that committee. We have prominent citizens, we have NGOs, we have people from education societies, and some editors to be members of that. If a news channel makes a mistake, warn it. Warning नहीं सुनते हैं, आप सजा दीजिए. We are prepared for it. Because in a changing society, when the media is changing, you need some sort of regulation, but that regulation cannot come from the government. Because government has a vested interest. I'm sure Justice J.S. Verma will not have a vested interest. In the days to come, you will see more and more attacks on media. You will see more and more attacks on news channels especially. कौन अटैक करेगा? वो पॉलिटिशियन जिसकी करप्शन को न्यूज चैनल एक्सपोज करता है, वो बाबा और साधु जिनके गलत कामों को न्यूज चैनल्स एक्सपोज करते हैं, जुडिशरी के वो लोग जो अपराधी के साथ मिलके अपने क्लाइंट को बर्बाद करते हैं, पुलिस के वो लोग जो मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं करते। कौन अपोज करेगा? वो पॉलिटिशियन जिनके बच्चे अपराध करके जेल में हैं और वो विटनेसेस को ब्राइब करके उन पर कब्जा करना चाहते हैं। वी आर अवेयर ऑफ दीज चैलेंजेस, वी आर प्रिपेयर टू फाइट इट बिकॉज वी हैव योर सपोर्ट विद अस।
मैंने ब्रीफली कोशिश की है उन बहुत सारे सवालों के जवाब देने की जो आपके मन में उठते हैं, जो आमतौर पर लोग पूछते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मैंने 16 साल से आपकी अदालत में लोगों से सवाल पूछे हैं। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब मैं लोगों से कहता हूं कि आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं कटघरे में हूं। प्लीज़ फील फ्री, आपके मन में कोई भी सवाल है, अच्छा सवाल, कड़वा सवाल, मीठा सवाल, आप पूछिए और मैं आपकी अदालत में हूं हर तरह के सवाल, इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए।